Assalamu alaikum, Dr. Afshin Akbar here. Today we are going to start our diet and physiology again from chapter number 1. So those who are new students, please on board, please. From today onwards again, I repeat कि हम chapters जो हैं अपने गाइटन के repeat कर रहे हैं दोबारा से ताकि आप लोग हमारे साथ साथ रहें, ठीक है? You must have Guyton and Hall textbook Medical Physiology 14th edition. In addition with this Guyton, you must have Medical Physiology Gyanan, ठीक है? और एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी जो जफ़र अली चौधरी की है वो जब हम इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे कॉलेजेस तो फिर आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, हमारा जो पहला चैप्टर है गाइटन का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 1। सेल फिजियोलॉजी, सेल्स आर द बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बगैर जो है वो लाइफ है नहीं, क्योंकि सारा फंक्शन इसी के उसमें आ जाता है, ठीक है? अच्छा, सेल को जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वी इंटरेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आगे डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जस्ट सी दिस वीडियो। The cytoplasmic membrane of a prokaryotic cell is the main gateway for movement of molecules in and out of the cell. This membrane may also be called the cell membrane or plasma membrane. Cytoplasmic membranes in bacteria are comprised of a phospholipid bilayer. Each phospholipid contains a phosphate bond located on the outer part of the bilayer, attached to a glycerol and two fatty acids, which makes the core of the membrane. The phosphate is negatively charged and hydrophobic, while the tail portion of the phospholipids is hydrophobic. Thus, cytoplasmic membranes are very effective in blocking passage of many molecules, while other molecules are allowed to pass. Cytoplasmic membranes also contain two types of proteins. Integral proteins often span the entire bilayer and act as channels for transport of molecules that normally wouldn't be able to penetrate the bilayer. Peripheral proteins are loosely attached to the membrane on one side or the other. Some of these may be glycoproteins, which are proteins bound to a polysaccharide. These proteins may function as recognition sites, enzymes, or receptors. G. Again, we have another video Of the inner cell and the regarding cell. to the outside world stands the cell's plasma membrane. This is the cell membrane actually from outside. It's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Pull hard enough and it might break and begin to regroove. The lipid molecules in the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates, and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. So hope you all are understand what is this plasma membrane is actually. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने इसमें वीडियो भी लास्ट में देखा होगा कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है बेसिकली, ठीक है? इसका हेड पोर्शन है और इसका टेल पोर्शंस भी मौजूद होते हैं, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो 2 टाइप की प्रोटीन्स हैं, ठीक है? और वो प्रोटीन्स जो हैं वो अलाउ करती हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे वाइटामिन हैं, ऑक्सीजन है, काफ़ी सारे आयन्स हैं, वो इन एंड आउट हो सकते हैं इन प्रोटीन के ज़रिए फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, ठीक है? तो हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम देखेंगे व्हाट इज फिजियोलॉजी इन दिस चैप्टर, एंड हम होम्योस्टेसिस को भी देखेंगे, होम्योस्टेसिस एंड डिफरेंस देखेंगे कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है।
ये भी चीज देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट जो हो रही है या मिक्सिंग सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारा उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिमूव होते हैं फ्रॉम सेल्स। उसके अलावा हम बॉडी की जो फंक्शन है उनकी रेगुलेशन, कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के काफ़ी सारे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जिसके मुताबिक जो है वो बॉडी अपने मुख्तलिफ फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है। सो हमारे जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, होम्योस्टेसिस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स and the difference between the transport and mixing system and the circulatory systems, or regulation of body functions and control system of the body. बेसिक सेल के फंक्शंस क्या है? फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट सेल खुद, ठीक है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ इन द लिविंग बीइंग। कोई भी जिंदा चीज, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें ये जो सेल है वो बहुत स्मॉल यूनिट है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सबसे पहला कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के फंक्शंस का, विच इज कॉल्ड एज सेल। तो बेसिक फंक्शन उसका ये है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस अंदर इंटरनली परफॉर्म हो रहे हैं। ये जो सेल है वो न्यूट्रिएंट भी ऑब्टेन करता है, ऑक्सीजन भी ऑब्टेन करता है और परफॉर्म भी कर रहा है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को दैट यूजेस न्यूट्रिएंट्स। ये केमिकल रिएक्शन में न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा है, ये ऑक्सीजन यूज कर रहा है एंड एनर्जी फॉर द सेल फंक्शन, ये सारी चीजें ये यूज कर रहा है। ये एलिमिनेट भी कर रहा है, निकाल भी रहा है अपने सेल अपने अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर की तरफ फेंक रहा है। ये काफी सारे प्रोटीन्स भी सिंथेसिस करता है। वो प्रोटीन्स किस लिए काम आती है? दिस इज नीडेड फॉर द ग्रोथ, सेल स्ट्रक्चर के लिए, और बहुत सारे अलग फंक्शंस हैं। अगर सेल का काम प्रोटीन बनाना है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप फंक्शन है उसका, ताकि सेल ग्रो भी करे, सेल का स्ट्रक्चर जो है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेल ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी तरह के दूसरे सेल्स को जो वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजी में बेसिकली साइंस दैट कंसर्न्ड विद द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पार्ट्स एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ बेसिकली अ बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो हम फिजियोलॉजी इसको कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस देख रहे हैं, उसके पार्ट्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस जो उसमें इन्वॉल्व है बॉडी में, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अगेन एक वर्ड आ जाता है, हम अक्सर फिजियोलॉजी में देखेंगे, कुछ हमें सिनेरियोज मिलेंगे हल करने के लिए, हम कहेंगे कि जी इस सिनेरियो में पैथोफिजियोलॉजी लिखें। इसका मतलब वी आर स्टडीइंग अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी फंक्शंस और वी आर डिस्कसिंग द डिजीजेस, द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन में किसी चीज को आप डायग्नोज करें तो वंस यू हैव टू नो द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, हमने डिस्कस किया था कि इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, इंट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर वाला एरिया, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट दैट मींस आउटसाइड द सेल। सो आउटसाइड द सेल हम देख रहे हैं, फिर इनसाइड द सेल देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, हियर वी आर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में हमें सोडियम नजर आ रहा है, ठीक है, इन हाई कंसंट्रेशन, a very low concentration of potassium, आप मेरे कर्सर को लाजमी देखिएगा, कैल्शियम, क्लोराइड इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट। जो तीन मेजर आयंस हमें नजर आ रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में, दीज आर द सोडियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ओके, एंड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। लेकिन इनमें हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो हमने सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट देखा, उसमें सोडियम ऐसा है जो कीटायन है, विच इज कॉल्ड आल्सो एज अ पॉजिटिव आयन। उसके बाद हम देख रहे हैं क्लोराइड और बाइकार्बोनेट कॉल्ड एज एनायन और नेगेटिव आयंस, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है हमें नजर आ रही, वो है पोटेशियम। फिर हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे मैग्नीशियम भी नजर आ रहा है, फॉस्फेट, ठीक है, and some proteins. So here we can say this intracellular compartment have a positive ion which is potassium, magnesium, both are positive ions, but it also has some negative ions which is phosphate and proteins, ठीक है। तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में अगर डिफरेंसेस हैं तो एक तो हम इनके वॉल्यूम को भी डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम्स मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से, लेकिन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ और आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, सोडियम जो है और क्लोराइड और जो इसमें हमें नजर आ रहा है बाइकार्बोनेट HCO3, एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड प्रोटीन्स आर इंट्रासेलुलर आयंस, राइट। Here we are, extracellular fluid contents sodium,
chloride, bicarbonate, oxygen, glucose, fatty acids, amino acids and carbon dioxide. These all are extracellular आयंस. ठीक है, हमें डायग्राम में बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट आयंस को डिस्कस किया गया था, जैसे सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट में दिखाया गया है. लेकिन इन अदरवाइज एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट हैव दीज आल्सो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड बाइकार्बोनेट. इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंटेंट्स कौन कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट्स. ठीक है, अब यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन है इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की. इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो 28 लीटर्स है. ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की जो टोटल क्वांटिटी है वो 14 लीटर्स है, इन विच द 3 लीटर्स इज प्लाज्मा एंड 11 लीटर्स ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, द बोथ प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. ठीक है, ये आप जरूर देखिएगा इसको. इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज 28 लीटर, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज 14 लीटर्स, इन विच 3 लीटर्स इज प्लाज्मा एंड 11 लीटर्स इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अगर आपसे डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, यू हैव टू राइट दिस. एंड दिस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन, whereas in intracellular fluid compartment large amount of potassium, magnesium and phosphate ions are present, right? Extracellular fluid compartment having nutrients: oxygen, glucose, fatty acids and amino acids, whereas intracellular fluid compartment have high protein concentration, right? The extracellular fluid compartment based is carbon dioxide, urea, uric acid, excess water and ions, right? Special transport mechanism that maintain the ionic concentration difference between ECF and ICF. यहाँ पे एक बहुत स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? अब हम आ जाते हैं हमारा जो चैप्टर है उसका जो मेन थीम है होम्योस्टेसिस के ऊपर. मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट और विच इज आल्सो कॉल्ड एज मैल्यू इंटीरियर. होता क्या है कि हम जो आयनिक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं या फ्लूइड कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इट शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स एंड आयन कंसंट्रेशन आर गिवन. ठीक है, तो अगर इंटरनल एनवायरनमेंट मैल्यू इंटीरियर हम बात करते हैं कि जी इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज 28 लीटर, व्हेन दिस 28 लीटर इज शॉर्ट, अगर ये 28 लीटर से 24 लीटर पे आ जाते हैं, दैट मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट इज नॉट मेंटेन्ड. अगर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज 14 लीटर्स, लेकिन अगर ये 16 से 18 लीटर पे आ जाता है, दैट मीन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट इज नॉट मेंटेन्ड. ये होम्योस्टेसिस नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेन द होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस को हम बेसिकली कह रहे हैं कि कांस्टेंट कंडीशन में वो मेंटेन्ड हो. ठीक है, a process by which the organisms keep internal condition relatively constant despite changes in the external environment, a process that is maintained by negative and positive feedback systems. होता क्या है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कंडीशन, हम रिपीट कर रहे हैं बात, ये किस तरह से होगी? कुछ प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, जैसे हम कहते हैं ये कंट्रोल सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, और ये जो प्रोसेसेस हैं, ये कंट्रोल सिस्टम्स जो है ये मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. हम इनको डिस्कस करेंगे कि जी ये जो मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन है इंटरनल एनवायरनमेंट की या होम्योस्टेसिस है, ये कैसे मेंटेन हो सकता है? इट इज मेंटेन्ड बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट मेंटेन बाय विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स. ब्लड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, हम ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे. ये जो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को जरा देखिएगा. इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो लंग्स हैं उनका बेसिकली काम क्या है कि ये ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं टू द ब्लड. ठीक है, इसी तरह से जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल की देती है लंग से ये होकर सैचुरेट होकर ब्लड के जरिए आ जाती है ब्लड के अंदर. ठीक है, थ्रू लंग्स इनटू एन ब्लड, और ब्लड से फिर ये सर्कुलेट करती रहती है थ्रू आउट द बॉडी. अच्छा, यहाँ से ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जा रही है लंग्स में, ताकि बाहर एलिमिनेट हो सके, बाहर खत्म एक्सेल हो सके. अब होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हम बाहर एटमॉस्फेयर से इनहेल नहीं करते, ये हमारे बॉडी के सेल्स के मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स मेटाबॉलिज्म. राइट, ऑक्सीजन हम बाहर से इनहेल करते हैं, ये आपको मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ. ठीक है,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में रिड्यूस होती है, उसके बाद ये सेल से ब्लड में आती है, ब्लड से फिर ये जाती है लंग्स में और लंग्स से ये फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगेन हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे से सेल्स हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके आसपास मौजूद है। तो होता क्या कि इन सेल्स और सर्कुलेटरी सेल्स के बीच में कुछ डिफ्यूजन होती है, दैट मीन्स सम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल इनटू एन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इनसाइड द सेल। सो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैपिलरी वॉल्स के जरिए ये सारा का सारा डिफ्यूजन प्रोड्यूस करता है विद डिफरेंट आयंस। अब लंग्स का जो बेसिक फंक्शन है ऑक्सीजन डिलीवर करना टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। किडनी का जो मेन फंक्शन है to maintain the constant ion concentration, that means sodium, potassium, magnesium and everything, all the ions. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम उसका काम है कि वो प्रोवाइड करे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ बोलस में ले ली है, खाना खा लिया है, वो जीआईटी सिस्टम के अंदर गया, वो इन्वॉल्व हुआ, वहाँ पे वो मेटाबोलाइज हुआ, सब कुछ डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ये भी एक बॉडी का काम है। क्या क्या रिमूव करता है? लंग्स से रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किडनी रिमूव कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स को एंड एंड प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, और कौन कौन सा फंक्शन रेगुलेट कर रहा है? सेल्स के जरिए हो रहे हैं, डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम है हमारा जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेशन जो चल रही है, हम कहते हैं बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट कर रहे हैं, कौन से सिस्टम्स के जरिए कर रहा है? हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को। सेंसरी इनपुट पोर्शन, दैट मीन्स वी सेंस समथिंग, वी सेंस सम सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स आवर ब्रेन, लाइक वी आर इन नियर द फायर, वी आर नियर एनी टच। सो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन उस बॉडी पार्ट से, उस टच पार्ट से वो फॉरेन सेंसरी सिस्टम के जरिए वो सेंसेशन जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन में जाएगी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स इन द मोटर कॉर्टेक्स, वहाँ पे ये इंटीग्रेट होगी, ब्रेन इसको इंटीग्रेट करेगा, अपने पास जमा रखेगा, उसके बाद इसका मोटर आउटपुट पोर्शन आएगा और मोटर फंक्शन आएगा कि आपने इस टच से, इस आँख से, इस पेन से, इस जो भी सेंसेशन उससे दूर होना है, ये आइदर आप उसके पास खड़े रह रहे हैं। ठीक है, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, autonomic nervous system operate at subconscious level and control the functions of internal organs like heart rate, हार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, GIT मूवमेंट्स को, ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी ये जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जो सेंसरी इनपुट पोर्शन इज फ्रॉम द पेरिफेरल सिस्टम, मतलब बॉडी में कहीं भी कोई भी सेंस जाएगी, सेंसेशन होगी, तो वो सबसे पहले रिसेप्टर बॉडी पे मौजूद होते हैं, हर सेंसेशन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो सेंस होगा, उसके बाद वो सेंसेशन जाएगी टुवर्ड्स योर ब्रेन, ब्रेन में वो सेंसेशन इंटीग्रेट होगी और उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्स देगा कि जी मोटर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए सब्जेक्ट का, और वो मोटर आउटपुट पोर्शन के जरिए, मोटर सिस्टम के जरिए वापस उसी जगह पर आएगी जहाँ पे आपको सेंसेशन आपकी गई थी यहाँ से। और either it's a touch, pain, burn, anything, and you can perform according to the sensation. अगर वो बर्न है आप अपना हाथ पीछे विड्रॉ करेंगे, अगर वो पिन और नीडल टच हुई है, छुरी से हाथ करके आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे। ठीक है, और अगर वो सिंपल टच है तो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है, हार्ट रेट आपका चल रहा है, आपको नहीं पता, ये सबकॉन्शियसली उसको रेगुलेट कर रहा है। GIT मूवमेंट्स, आपने खाना खा लिया, GIT की मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, दिस इज अगेन कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हो रही हैं फ्रॉम पिट्यूटरी, फ्रॉम थायराइड, फ्रॉम एवरीवेयर इन द बॉडी where the glands are present and you cannot know about it, so it is all operated by autonomic nervous system. Hormonal system, we have a major 8 endocrine glands in the body can secrete these hormones, and these hormones can then enter into an extracellular fluid compartment, and from this extracellular fluid compartment it can go or travel towards the body tissues, and from here these tissues, when it can take these gland secretions, it can regulate the cellular function. आप इसमें बहुत सारे hormones को देख सकते हैं। मेजर 8 ग्लैंड्स जो हैं उसमें हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, ठीक है, फिर थायराइड है, उसके बाद पैंक्रियाटिक टिश्यू जो है वो पैंक्रियाज जो है उसके ग्लैंड्स आ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फैट सेल्स हैं अगेन दे एक्ट एज एन ग्लैंड,
उसके बाद हम देखेंगे एडिनल ग्लैंड्स भी मौजूद है, ठीक है, किडनी एक्ट एज एन ग्लैंड, वहाँ से भी एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो टेस्टिकुलर ग्लैंड्स हैं, ओवेरियन ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड्स हैं, मेजर 8 ग्लैंड्स हैं, इन सबका काम क्या है, हार्मोन रिलीज करना, ठीक है। हार्मोन वहाँ से रिलीज होने के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जाते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से वहाँ पे बॉडी टिश्यूज के पास, बॉडी टिश्यूज से वो सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड हार्मोनल सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्स CNS, और बहुत सारे जो है फंक्शन CNS के वहाँ पे भी परफॉर्म है। एंड CNS रेगुलेट मस्कुलर सिक्रेटरी एक्टिविटीज एंड हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब होता है क्या है कि जो हार्मोनल सिस्टम है हमारा, जो बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है, वो और CNS जो है वो बहुत ही एक्टिवली फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रेगुलेट कर रहा है मस्कुलर सिस्टम को, सिक्रेटरी एक्टिविटीज को भी, और हार्मोनल सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक फंक्शंस भी। इम्यून एंड एंटीग्यूमेटरी सिस्टम, ठीक है, बॉडी का एक ये भी फंक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, देखिए अगर इम्यून सिस्टम ना हो, बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफत ना हो, इम्यून सिस्टम ना हो, तो क्या होगा, बॉडी प्रोटेक्ट नहीं हो सके। और एंटीग्यूमेटरी सिस्टम ना हो, अगर स्किन मौजूद ना हो, तो क्या हो जाएगा, बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। रिप्रोडक्शन भी एक मेन फंक्शन है, हेल्प मेंटेन द होम्योस्टेसिस बाय जनरेटिंग न्यू बीइंग्स टू टेक प्लेस दोज टाइम्स, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस होने का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, सेल्स भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे न्यू सेल्स आ रहे हैं तो पुराने जो है वो खत्म होते जा रहे हैं सेल्स। कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी में हम देखते हैं कि जो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है, ठीक है। एंड दिस होम्योस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस सेल्स, राइट। एंड दिस सेल्स मेक अप द बॉडी सिस्टम्स, जितने भी सेल्स हैं ये सारे मिलके बॉडी सिस्टम्स बना रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए कैसे हो सकता है। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ओनली अबाउट 11 फ़ारेनहाइट, 7 डिग्री, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 97, 98 समथिंग, उसको 7 डिग्री और आप बढ़ा दें, ठीक है। अगर आप सेंटीग्रेड में चले जाते हैं तो आप सेंटीग्रेड में 37 नॉर्मल होता है, 36 नॉर्मल होता है, 37, 36, उसमें अगर आप 7 सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दें, या फ़ारेनहाइट में आप देखें 98 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, आप 11 फ़ारेनहाइट और इंक्रीज कर दें, इससे होगा क्या कि सेल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, एंड दिस कैन कॉज डिस्ट्रॉय ऑल द सेल्स। पोटेशियम, K is used for potassium. डिक्रीज इन पोटेशियम 1/3, नॉर्मल पोटेशियम की जो वैल्यू होती है बॉडी के अंदर वो 4.5 से लेके 5 तक होती है, ठीक है। अगर ये कम हो जाए ना 1/3 भी, तो क्या हो जाएगा, नर्व सिग्नल्स नहीं हो सकेंगे, नर्व को सिग्नल नहीं मिलेंगे, और नर्व को सिग्नल नहीं मिलेंगे तो मसल जो है वो काम नहीं करेगा, एंड दैट लीड्स टू पैरालिसिस। अगर पोटेशियम इंक्रीज हो जाए 2 to 3 टाइम्स, नॉर्मल पोटेशियम मैंने आपसे बताया कि 4 से लेकर शुरू हो जाता है 5 तक मैक्सिमम, ठीक है। हर लेबोरेटरीज को अलग अलग करती है, उसकी रेंजेस होती है, लेकिन इट इज नॉर्मली 4 to 5, राइट। अगर ये 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, इट कैन लीड टू कार्डियक डिप्रेशन। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि एक आयन है बॉडी के लिए, अगर ये डिक्रीज हो जाए ना हाफ नॉर्मल से भी, नॉर्मल रेंजेस की शुरू हो जाती है 8 से, ठीक है, 8.5 से और 10 तक चली जाती है। अगर ये 8 ना हो, ये किसी का 5 पे चले जाए, किसी का 6 पे चले जाए, इंक्रीज नर्व इम्पल्सेस, स्किन कैन टेटनी, ठीक है, जैसे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ग्लूकोज अगर हाफ नॉर्मल से कम हो जाए तो मेंटल इरिटेबिलिटी और कन्वल्जन्स, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा और उससे दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, वो बेहोशी की तरफ चला जाएगा। सो वी ऑल नीड इज होम्योस्टेसिस, ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंटेन्ड अंडर देयर नॉर्मल रेंजेस। Thousands of control systems in the human body and control system that operate within the organ, इसमें genetic control system भी है, control system that operate throughout the entire body to control the interrelations between the organs. So first we can discuss the control system that operate within the organs of genetic control system is operate in all cells. हम देख रहे हैं कि जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो सारे सेल्स में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प कंट्रोल इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस। इंट्रा सेलुलर फंक्शंस हम देखेंगे, सेल के अंदर जो इंट्रा सेलुलर फंक्शंस हैं, दीज इंट्रा सेलुलर फंक्शन शुड बी कंट्रोल्ड और एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस शुड बी कंट्रोल्ड एंड टू बी मेंटेन्ड इन होम्योस्टेसिस
होम्योस्टेटिक लेवल्स। अगर इंट्रासेलुलरली हमने डिस्कस किया था कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अगर ये वाइस वर्सा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनका कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता यही है कि जहाँ पे आयंस ज़्यादा होते हैं फ्लूइड हमेशा उस वहाँ की तरफ मूव करता है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, राइट। तो इफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट उसके पास जैसे हमने देखा कि सोडियम ज़्यादा होता है, बट इन एनी कंडीशन लाइक डायरिया, लाइक वॉमिटिंग, इफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट आयन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड, तो होगा क्या कि एक्स्ट्रा सेलुलर में जितना भी फ्लूइड रिमेनिंग है ये ऑस्मोसिस करता हुआ कहाँ की तरफ भागेगा, इंट्रासेलुलर की तरफ भागेगा। जब ये इंट्रासेलुलर की तरफ भागेगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर एडिमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। So these all things can disrupt if this homeostatic control system is disturbed. अब बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे सिस्टम्स हैं उनका आपस में इंटररिलेशन है बिटवीन द ऑर्गन्स। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेते हैं, नर्वस सिस्टम को देखते हैं, ये रेगुलेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ईसीएफ, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रेन में मौजूद हैं। इफ subject have increased carbon dioxide, increased metabolism of the cell, these increase in metabolism of the cell can produce more carbon dioxide। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ना ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, और रेस्पिरेटरी सेंटर्स स्टिमुलेट हो जाएगा तो सब्जेक्ट बड़े बड़े सांस लेगा, इट कैन ब्रीथ मोर, और ज़्यादा ब्रीथ करने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जो है वो एक्सहेल करेगा। सो इन दोनों सिस्टम्स का, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम है, इनका आपस में रिलेशन है, दे आर इंटर रिलेटेड। लिवर एंड पैंक्रियाज, these both can regulate the glucose concentration in the ECF। अब ये दोनों किस तरह से रेगुलेट करते हैं, लिवर का काम है ग्लूकोज को स्टोर भी करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करना। ठीक है, पैंक्रियास का क्या काम है कि वो वहाँ से पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होती है, एंड दिस इंसुलिन इज केपेबल ऑफ टेकिंग दिस ग्लूकोज इनसाइड द ECF। ठीक है, अगर इंसुलिन मौजूद नहीं होगी तो ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट से जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इंसुलिन जो है ये कंपनी करती है विद द ग्लूकोज इनटू एन ECF, और वहां से ये इसके साथ कंपनी करती हुई इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में चली जाती है। सो ECF पे इतना ज्यादा ग्लूकोज मौजूद नहीं रहता, लेकिन वंस दिस पैंक्रियाज इज डैमेज, द बीटा सेल्स हु secrete the insulin is damaged। Insulin, if insulin is no more available for this utilization of this glucose, the glucose concentration is higher in the extracellular compartment or increased in the plasma compartment। तो होगा क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट डायबिटिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि जी ये इंसुलिन का जो है काम है कि वो ग्लूकोज को जो मेटाबोलाइज करवा रही है। सिमिलरली अगर कोई सब्जेक्ट फास्टिंग के अंदर है, ठीक है, एक तो हमने ये एस्पेक्ट इसका डिस्कस किया, एक अगर सब्जेक्ट फास्टिंग के अंदर है, ठीक है, रोजा रखा हुआ उसका, जो अदरवाइज फास्टिंग के अंदर है, तो लिवर का काम क्या है कि जो उसने स्टोर्ड ग्लूकोज रखा है वो उसको रिलीज करे, और ECF में अगर ग्लूकोज की कमी हो गई है, इफ दिस ECF इज शॉर्ट ऑफ दिस ग्लूकोज, तो लिवर का काम है कि वहां से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करे और ECF को मेंटेन करे उसकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, जो उसके बाद किडनी जो है, ये जो सारे सिस्टम्स आपस में इंटररिलेटेड, किडनी का क्या काम है, ये रेगुलेट कर रही है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड अदर आयंस इन द ECF। अब किडनीज का काम है कि इन सारे आयंस को भी रेगुलेट करे। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, अगर किडनी किसी सब्जेक्ट ने बहुत ज्यादा सोडियम कंज्यूम किया है, दिस Na इज सोडियम, राइट, एंड दिस H इज हाइड्रोजन, K is for potassium, PO is for phosphate and the different ions, right? Hydrogen, sodium, potassium and phosphate। किडनीज को किस तरह से रेगुलेट करती है कि अगर किसी सब्जेक्ट ने ज़्यादा सोडियम कंज्यूम किया हुआ है, या किसी सब्जेक्ट के अंदर जो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है ड्यू टू सम मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस और ड्यू टू सम डिजीजेस, तो किडनी इनिशियली इसको कैसे रेगुलेट करती है। किडनी के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डायूरेसिस एंड नेट यूरेसिस, हम सोडियम को रेफरेंस कर रहे हैं।
तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो नेट यूरोसिस के जरिए यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। किडनी सेंस करती है कि जी बहुत ज्यादा सोडियम है, ठीक है, तो किडनी क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। किडनी अगर सेंस करती है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो किडनी का एक और एक सिस्टम जिसे डाययूरेसिस कहते हैं, किडनी ज्यादा पानी को बाहर निकालेगी, सो दीज कंसंट्रेशंस आर मेंटेन्ड, ठीक है। किडनी का ही एक फंक्शन है कि वो इस हाइड्रोजन को अगर बॉडी के अंदर मेंटेन्ड है, ठीक है, लेकिन अगर ये इसके आयन ज्यादा हुए, किडनी हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस यूरिन और ये बाहर चला जाता है। सिमिलरली फॉर द पोटेशियम, फॉर द फॉस्फेट, अगर इनकी जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ये मेंटेन्ड अपनी रेंजेस में मौजूद हैं, इट्स ओके विद द extracellular fluid compartment. If these concentrations are deranged, or if these concentrations can cause damage to the cells, the kidney can perform their function and eliminate these ions, or sometimes kidney can retain the ions to help the ECF function. कंट्रोल सिस्टम की हम जब बात कर रहे थे कि कंट्रोल सिस्टम एग्जाम्पल जिसकी हमने दिया हुआ है, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ECF, स्पेशल एक कंट्रोल मैकेनिज्म है दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी मौजूद है, ये भी जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, और इस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को पहुंचाया जाए ताकि टिश्यू अपना काम परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन है एक हीमोग्लोबिन का, स्ट्रॉन्ग केमिकल एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन, बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जैसे इनहेल करते हैं लंग्स में गई, लंग्स से ये सैचुरेट होके हीमोग्लोबिन के साथ जगह बाइंड हो गई, ब्लड में इंटर हो गई, एंड इफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो इन द ECF, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, तो जितना ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है इसके साथ डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ उससे हट जाएगा और फौरी का फौरी जो वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट को सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज ऑलरेडी इन द ECF, देयर इज नो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड विद ऑक्सीजन, राइट। जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में कहाँ पे मौजूद होती है, ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है when ECF is needed or ECF of short of this oxygen, this hemoglobin oxygen dissociation is happened and this oxygen is delivered or transported towards the ECF. अगर ECF के अंदर ऑक्सीजन की sufficient supply पहुंच चुकी है, there is no further oxygen hemoglobin dissociation. कार्बन डाइऑक्साइड की किस तरह से हम देखेंगे कि ये रेगुलेट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन इन द सेल्स। जो सेल्स के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स और सबके साथ मिलके ये मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन इन द फ्लूइड स्टॉप ऑल द फॉरवर्ड रिएक्शंस इन द सेल अनलेस रिमूव्ड। होता क्या है कि अगर फ्लूइड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है, तो जितने भी इसके बाकी के रिएक्शंस हैं जो सेल काम कर रहा था वो कुछ वक्त के लिए जो है वो बंद हो जाएंगे, उस वक्त तक के जब तक के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो ऑक्सीडेटिव इसके रिएक्शंस हो रहे थे वो सारी की सारी रिमूव ना हो जाए, ठीक है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हाइपरकैपनिया, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट जो है वो ब्रेथ करता है और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। एक्साइटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये पहले मैं आपको डिस्कस कर चुकी थी कि ब्रेन के साथ उसका कोऑर्डिनेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके सेंटर्स जो हैं वो ब्रेन में मौजूद हैं, ब्रेन स्टेम में, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। इंक्रीज एक्सपिरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर की तरफ जो है वो एक्सपिरेशन होना शुरू हो जाएगी। रिमूवल ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टिश्यू फ्लूइड कंटिन्यू एंड नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड। समझ आ गई ये बात कि ECF के जरिए हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से हमने देखा कि ब्रेन इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, या जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, जब ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है,
ये भी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो उसको भी रेगुलेट कर रहा है बॉडी का सिस्टम। बैरोरिसेप्टर सिस्टम्स हैं, ठीक है। अब ये जो बैरोरिसेप्टर सिस्टम्स हैं एंड रिसेप्टर्स कहलाए जाते हैं इनको, और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? ये बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी ऑन द आर्क ऑफ एओर्टा। ये जो कैरोटिड आर्टरी आपको नजर आ रही है ना, ये गर्दन के साइड में हमें कैरोटिड नजर आ रही होती है, जो मोटी सी एक नस गुजरती है। आर्क ऑफ एओर्टा जो है वो कहाँ पर होती है? हार्ट के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है। आप इसको जरूर एक दफा देखिएगा, डायग्राम्स होती हैं इनकी। यहाँ पे कुछ बैरोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर का मतलब ये है कि ये सेंस करते हैं हाई बीपी को और लो ब्लड प्रेशर को। इफ देयर इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, नर्व इम्पल्सेस एंड इम्पल्सेस टू द ब्रेन की तरफ गई। ये इनहिबिट करती हैं इम्पल्सेस वेजोमोटर सेंटर को, VMC जो यहाँ पे लिखा वेजोमोटर सेंटर्स को, ये इनको इनहिबिट करती हैं इन सेंटर्स को। एंड डिक्रीज इम्पल्सेस थ्रू सिंपैथेटिक। बेसिकली सिंपैथेटिक का मतलब क्या है कि सिंपैथेटिक इम्पल्सेस भेज रहा होता है और वो हमारा ब्लड प्रेशर जो वो मेंटेन होता है। समटाइम्स इट कैन इंक्रीज ड्यू टू एनी डिजीज। सो अगर किसी सब्जेक्ट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में जाएंगी, ब्रेन वो इनहिबिट कर देता है वेजोमोटर सेंटर्स को ताकि सिंपैथेटिक जो है अपनी इम्पल्सेस को कम कर सके, ठीक है। और वो कम इम्पल्सेस फिर हार्ट की तरफ आएंगी, ब्लड वेसल्स की तरफ आएंगी, हार्ट की पंपिंग डिक्रीज हो जाएगी, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाएगी। पेरिफेरल मतलब बॉडी के और पार्ट्स में जो वेसल्स हैं वो थोड़ी सी वेजोडाइलेट कर देंगे। जब वो वेजोडाइलेट करती हैं तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, ठीक है। एंड दिस increased blood flow can lead to decreased blood pressure towards the normal, ठीक है। ये बॉडी के अपने कंट्रोल सिस्टम्स हैं। Conversely, when there is decreased blood pressure, it relaxes the baroreceptor, it stimulates the vasomotor center, it can cause increased heart pumping, increased vasoconstriction and increased blood pressure towards normal. So arterial pressure भी किस तरह से रेट हो रहा है बॉडी में? बैरोरिसेप्टर सिस्टम के जरिए, ठीक है। तो बैरोरिसेप्टर सिस्टम जो है वो सेंस करता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर को भी और डिक्रीज ब्लड प्रेशर को। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, these nerve impulses goes towards the brain, it can inhibit the vasomotor center in the brain and that leads to decreased impulses through the sympathetics, decreased sympathetic towards the heart and blood vessels, and finally it can cause decreased heart pumping and peripheral vasodilation. And as a result of this, increased blood flow, and this increased blood flow can lead to decreased blood pressure towards normal, right? Conversely, when there is the baroreceptors and it can stimulate the vasomotor center, and as a result of this increased heart pumping and vasoconstriction that leads to increased blood pressure towards normal. टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, which is called as negative and positive feedback system. Negative feedback system जो mechanism है, it consists of reducing the output or activity of any organ or system back to its normal range of functions. अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने पीछे भी डिस्कस किया, ब्लड प्रेशर को देखा, टेम्परेचर रेगुलेशन उसकी एक एग्जांपल है। द रिस्पांस इज नेगेटिव टू द इनिशियल स्टिमुलस। इसमें होता क्या है, इसको आपको सिंपल एक ज़बान में समझा रही हूँ कि देखें कोई भी सिस्टम जब भी शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था तो क्या हुआ, ये होम्योस्टेसिस से उतर गया था, ऐसे ही था। अब जो होम्योस्टेसिस से ये हटा और इसने क्या किया, अगर ये ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रहता तो क्या हो जाता, किसी सब्जेक्ट को फालेज हो जाता, किसी को हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मौजूद है तो उस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, वेजोमोटर इंटरबिट हो गया, सिंपैथेटिक कम हो गए, हार्ट की पंपिंग कम हो गई और उसने फाइनली ब्लड प्रेशर को कम कर दिया। दैट मीन्स जो इनिशियल स्टिमुलस था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था जो, उसके मुकाबले में जो आउटपुट था उसका वो कम हो गया है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर होता ये कि बीपी बढ़ा ही है तो बढ़ बढ़ के इतना बढ़ गया कि उसने मरीज के दिमाग की नस फाड़ दी या उसने उसको हार्ट अटैक करा दिया या वो मरीज मर गया, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इनिशियल स्टिमुलस अगर एम्पलीफाई हो जाए तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। इनिशियल स्टिमुलस अगर जो है वो रिजल्ट को वापस बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लेकर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के जरिए अगर बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर बन रहा है, टिश्यू के अंदर मौजूद है, तो क्या हुआ, ब्रेन में जा गए, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुए, बहुत ज़्यादा हाइपरकैप्निया हुआ, सब्जेक्ट ने बड़ी सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया एंड फाइनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो गई उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है।
Positive feedback amplifies an initial change, do not occur as often as negative feedback. So होता क्या है कि ज़्यादा जो हमारे बॉडी में कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक वाले हैं और बहुत कम हैं जो हेल्प आउट करते हैं समटाइम्स इन द बॉडी विच इज़ पॉजिटिव फीडबैक. सो पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास, उसमें हम उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक है वो ज़्यादा बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है. जो नेगेटिव फीडबैक है ये प्राइमरी टाइप है होम्योस्टेसिस कंट्रोल, होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम. द रिस्पॉन्स डिक्रीजेस द इनिशियल स्टिमुलस. ठीक है, जो इसका रिस्पॉन्स आया मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, इनिशियल स्टिमुलस उसका रिस्पॉन्स जो उसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया इनिशियल स्टिमुलस को. ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल, कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू नॉर्मल. सिमिलरली इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा आ गया है तो बॉडी के कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे और वो टेम्परेचर को कम कर देंगे. इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सेंसर है. ठीक है, सेंसर मॉनिटर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टिमुलस. ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सेंटर है, इट कंपेयर्स द सेंसर्स इनपुट विद अ सेट पॉइंट. ठीक है, और फैक्टर्स हैं, मेक अ रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस, मेक अ रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो हमें डिफरेंट डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं, हमें जो डिजायर्ड इफेक्ट्स चाहिए तो वो इफेक्टर की तरफ आ रहे हैं. सो सेंस कर रहा है बॉडी का सिस्टम, फिर कंट्रोल सिस्टम उसको देख रहा है कि इसका सेट पॉइंट कहाँ पर है, इसको कहाँ पे सेट होना चाहिए इन केस ऑफ टेम्परेचर. उसके बाद इफेक्टर रिस्पॉन्स है, जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो इफेक्टर्स वो दे रहे हैं. तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले जो स्टिमुलस होता है, चेंज अकर्स इन द इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आ जाए, इट कैन स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स कैन गो और send the signals towards the control center or set point. Change is compared to the set point. जो चेंज आया इसकी वजह से वो सेट पॉइंट एक होता है ना बॉडी का कि जी इतना इसका रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए, इसका इतना कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में लेवल होना चाहिए, इतना इसका जो वो टेम्परेचर का लेवल होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रेन में सेट होती हैं, सेट पॉइंट है. जो आप चेंज बॉडी के अंदर आ रहा है तो वो क्या होता है, वो चेंज कंपेयर होता है ब्रेन के अंदर के सेट पॉइंट के साथ. उसके बाद जो इफेक्टर्स हैं वो मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट करते हैं. आइदर सिक्रीशंस देनी है, नहीं देनी, आइदर मसल ने वर्क करना है, नहीं करना, ज़्यादा करना है, कम करना है, वो सारे फैक्टर की तरफ आएंगे. और उसके बाद ये रिस्पॉन्स आएगा, आइदर दिस चेंज इज करेक्टेड. ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं किसके, कंट्रोल सेंटर्स के. ठीक है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर एंड फाइनली रिस्पॉन्स. तो आपको जो इसके आपसे पूछा जाए ना कि जी इसके कंपोनेंट्स क्या हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के, तो आपने क्या लिखना है इसमें, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, उसके बाद इफेक्टर, उसके बाद रिस्पॉन्स. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक, उसकी एग्जांपल्स. नेगेटिव तो हम डिस्कस कर चुके हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, इसमें ऑक्सीजन हो सकती है, या हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि जी टेम्परेचर हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक को हमने डिस्कस किया था, एम्पलीफाइड इनिशियल चेंज. जो इनिशियल चेंज आई थी उसने फर्दर चीज़ों को कम नहीं किया और बढ़ा दिया. डू नॉट अकर एज ऑफन एज नेगेटिव फीडबैक. सो जो कॉमन प्रैक्टिस है बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम जो ज़्यादा काम करता है वो नेगेटिव फीडबैक है. पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कुछ जो है वो एग्जांपल्स में काम करती है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर. अगर कोई फीमेल लेबर में चली गई है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके को रुक जाएगा तो क्या होगा, लेबर नहीं होगा. सो दीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वन कॉन्ट्रैक्शन टू एम्पलीफाई द अदर एंड द अदर एम्पलीफाई द नेक्स्ट अदर कॉन्ट्रैक्शन. सो इसकी वजह से जो है वो डिलीवरिंग ऑफ दिस बेबी हो रहा है. तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगेन एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. अब जब ब्लड को का जो हम चैप्टर्स आगे डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग का एक मैकेनिज्म है कि उसमें एक जो उसका ब्लड क्लॉटिंग का एक फैक्टर है वो दूसरे को स्टिमुलेट करता है, दूसरा तीसरे को स्टिमुलेट करता है, तीसरा चौथे को स्टिमुलेट करता है. तो वो क्या था, एक चेन ऑफ रिएक्शंस है. वन फैक्टर कैन स्टिमुलेट द अदर वन, द नेक्स्ट एंड सो फोर्थ. तो इस तरह से सारे के सारे जो है वो फैक्टर जो स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है. तो दिस ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज हेल्पिंग इन दिस पॉजिटिव फीडबैक. लैक्टेशन है,
बेबी सक्लिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस सक्लिंग में क्या हो रहा है कि सिग्नल्स आ रहे हैं टूवर्ड्स द ब्रेन, वहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट के जो है वो लोब्यूल्स पे और अल्वेलस के ऊपर, और वो लैक्टेशन हो रही है। अगेन एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। एंड जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स क्या हो रहा है, कोई सब्जेक्ट अगर एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है, बॉडी पार्ट्स जो वो मूवमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, एक नर्व सिग्नल दूसरे को एम्पलीफाई करता रहेगा ताकि बॉडी मूवमेंट इन एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्टिव वर्क, ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग एंड एवरी बॉडी वर्क is dependent of the generation of these nerve signals. Again, the nerve generation of this nerve signals is an example of positive feedback. ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक है, समटाइम्स इट कैन कॉज विशियस साइकिल, गोज इन अ विशियस साइकिल एंड द सब्जेक्ट इज डाइड। एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक का एक ये भी है कि सब्जेक्ट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट पंप करता है 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। अगर किसी सब्जेक्ट का ड्यूरिंग एक्सरसाइज 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया, पुअर पंपिंग है, हार्ट पुअर पंप करेगा, ठीक है। 5 लीटर पे आप देखेंगे निशान लगा हुआ है। आपने देखा कि इस सब्जेक्ट का जो है वो अगर 1 लीटर ब्लीड करता है ना सब्जेक्ट, तो क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इसकी पंपिंग फिर रिटर्न टू नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट 2 लीटर ब्लीड करता है, ब्लड लॉस कर जाता है, तो क्या होता है, पुअर पंपिंग है, लेस आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, कॉरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, इसका मतलब हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हार्ट वीक होना शुरू हो जाएगा, हार्ट पंप कम करेगा, इसीलिए और कॉरोनरीज हम कहते हैं हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको, ठीक है, और उसका फ्लो कम हो जाएगा, हार्ट और वीक हो जाएगा एंड फाइनली लीड्स टू डेथ। अगर किसी सब्जेक्ट का 1 लीटर ब्लड जो है वो लॉस होता है, तो इट कैन कॉज रिटर्न टू नॉर्मल, but when the subject is bleed 2 liters, it can lead to death within 3 hours, right? So conclusion is initiating stimulus causes more of the same, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अच्छा, माइल्ड पॉजिटिव में हमने अभी जो डिस्कस किया था, which does not lead to death, उसमें हमने देखा कि अगर कोई सब्जेक्ट पर्सन ब्लीड 1 लीटर, कंट्रोल मैकेनिज्म इसको रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। उसमें ये इस तरह से होता है। पॉजिटिव फीडबैक के हैजर्ड्स क्या हैं? हैजर्ड्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हीट स्ट्रोक हो सकता है, इरिवर्सिबल शॉक में सब्जेक्ट जा सकता है, ठीक है। If these things are not properly treated in time, the heat stroke can lead to death. The shock will lead to death. यूजफुलनेस क्या है पॉजिटिव फीडबैक की? ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ है एंड जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स है। इसके फायदे ये हैं कि ब्लड क्लॉट करा देती है फौरन, लेकिन जब एक सब्जेक्ट का 2 लीटर ब्लड लॉस हो चुका है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग डजंट मीन एनीथिंग, राइट? बट इफ द ब्लड loss is 1 liter, the blood clotting means something, right? Which is called as a mild positive feedback. So childbirth again an example of positive feedback and it is useful. Generation of nerve signals again a positive feedback, again a useful. Adaptive control or feed forward control, again we have some third option as well. Sometimes brain uses a principle feed forward control to cause required muscle contraction, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से फौरी तौर पे एक डिसीजन करना होता है। हम इसमें एग्जांपल एक बड़ी अच्छी सी मजेदार सी लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल ये लेते हैं कि जो अगर किसी के सामने अचानक शेर आ जाए तो क्या है कि फौरी तौर पे nerve signals from moving part towards the brain, if not correct, brain correct the feed forward signal and muscle and correct the movement the next time. इसमें होता क्या है कि अगर किसी के सामने अचानक शेर आ जाए, which is not planned, which is not required situation for any subject in normal life, so होता है क्या है कि सब्जेक्ट जो है ना वो अचानक एक जिसे कहते हैं ना छलांग लगा के भागना। एक होता है ना रूटीन, आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जो बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में मसल रिक्वायर्ड होती हैं, ब्रेन उसको ट्रेन करता है, ठीक है। ब्रेन करेक्ट करता है उस सिग्नल्स को, क्योंकि वो सिग्नल इस हद तक वो सिग्नल जो है वो ब्रेन को टच ही नहीं कर पाते और सब्जेक्ट ब्रेन की तरफ सिग्नल ही नहीं जाता, वो सेंसरी सिग्नल ही नहीं जाते। फौरी तौर पे सब्जेक्ट जो है वो या तो छलांग लगा लेता है या वो
भागना शुरू करे तो ब्रेन फौरी तौर पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो। क्योंकि होता क्या है कि शेर को देख के अगर किसी के सामने शेर आ जाए, सांप आ जाए, किसी को तो कॉकरोच चूहों से भी डर लगता है, तो सब्जेक्ट जब वो घबराहट में अक्सर गिर जाता है। दैट मीन्स दीज सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्रेन। सो फौरी तौर पे ब्रेन उसको कंट्रोल करके फीड फॉरवर्ड के जरिए उन मूवमेंट्स को करेक्ट करता है, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड टू कैरी आउट द करेक्ट मूवमेंट। जिसे हम कहते हैं कि एडेप्टिव कंट्रोल और डिलेड नेगेटिव कंट्रोल, राइट। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो कोई बात तो अभी भी मुझे मैसेज कर सकता है वो बच्चा। दैट्स व्हाई आई कैन रिपीट दीज थिंग्स। अगर किसी बच्चे को अभी भी हमने जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है वो अभी ना समझ आया हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। So I hope all can get this very easy chapter. We have 48 students here. Anyone? होम्यो का कंपैरिजन दोबारा बताते हैं। ओके आप चाह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस को दोबारा डिस्कस कर दूं? कंपोनेंट्स, ओके 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 आई कैन गेट योर पॉइंट। जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। चेंज आ जाए कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, हम सोडियम को ले लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। चले कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इजी क्योंकि हमने पीछे इसको डिस्कशन में भी लेकर आए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर किसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। अगर उसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो उसका जो स्टिमुलस है ज़्यादा, अगर कोई भी कंपोनेंट बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो फौरन अपने सिग्नल्स ब्रेन की तरफ भेजता है, ठीक है। तो ये अपने इसका जो स्टिमुलस था चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स चेंज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन टेक इस चेंज इन द आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? ये ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। सिमिलरली बैरो रिसेप्टर्स की बात करेंगे जब हम आर्टीरियल प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो उसका जो स्टिमुलस है वो चेंज जो भी चेंज आया है आइदर ज़्यादा है या कम है उसके रिसेप्टर सेंस करेंगे और वो कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे ब्रेन की तरफ। ब्रेन उसको फौरन कंपैरिजन में लेकर आएगा कि मेरे पास जो सेट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास से टोटल बॉडी में जो वो इतनी होनी चाहिए थी, कोई 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होनी चाहिए, तो ये तो 20 हो रही है। तो ब्रेन क्या काम करेगा? फौरन जो है वो सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगा मसल्स को। मसल्स किसके? रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। तो क्या होना शुरू हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी मसल्स ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो ये सिग्नल्स ब्रेन ने क्या काम किया? रेस्पिरेटरी सेंटर्स बेसिकली कहाँ पर हैं? ब्रेन में मौजूद हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, सिग्नल्स भेजेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स की तरफ, वो ज़्यादा जो है अपना काम परफॉर्म करेंगे और सब्जेक्ट जो हाइपर कैपनिक हो जाएगा, दैट मीन्स ही कैन एलिमिनेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बाय माउथ। और उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स क्या आएगा? चेंज इज करेक्टेड। फिर आप उस सब्जेक्ट को जब चेंज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विच इज नॉर्मल, ठीक है। तो इनिशियल चेंज कैन कॉज स्टिमुलस टू द रिसेप्टर्स एंड दिस रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेंज इज कंपेयर टू द सेट पॉइंट एंड फाइनली वो जो है इफेक्टर मसल्स को या ग्लैंड्स को कहीं भी वो अपने सिग्नल्स भेजेगा और उस सिग्नल का काम ये है कि जो चेंज आया था उसको करेक्ट कर सके, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स फाइनली करेक्शन। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों? पॉजिटिव फीडबैक, ओके। पॉजिटिव फीडबैक हम कहते हैं, हमने पहले भी बात किया है, जैसे कोई भी इनिशियल स्टिमुलस है, ठीक है। इनिशियल स्टिमुलस का मतलब ये, जैसे हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की एक एग्जांपल ली थी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है एक ड्यूरिंग लेबर, अगर कोई फीमेल फुल टर्म के साथ है और वो ड्यूरिंग लेबर है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुई, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन उससे ज्यादा हुई, तीसरी कॉन्ट्रैक्शन उससे ज्यादा हुई, चौथी कॉन्ट्रैक्शन उससे भी ज्यादा हुई और फाइनली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन लीड टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी विच इज इम्पोर्टेंट at the time when the female is in full term, ठीक है।
दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स दैट एम्पलीफाइड इनिशियल चेंज। इनिशियल चेंज क्या था, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थी और वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई, दैट मीन्स दिस इनिशियल चेंज एम्पलीफाइज। ठीक है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में है। ब्लड क्लॉटिंग की सब बात कर लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम जब ब्लड को पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब वो सारे एक फैक्टर दूसरे को इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, दूसरा एक्टिवेट होता है, वो सारे फैक्टर मिलकर ब्लड क्लॉट कराते हैं। जब भी हमें कहीं पे कट आ गया, थोड़ी सी इंजरी हो गई, हम देखते हैं खून जम गया है, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या होता है, ये एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को जो है वो स्टिमुलेट करता है, फाइनली लीड्स टू ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लैक्टेशन, बेबी जो है वो सकलिंग करता है, सकलिंग से कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, उससे वो सिग्नल जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन से हम देखेंगे कि वहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वहीं पे हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका काम है जो प्रोलैक्टिन उसको सिक्रीट करना। हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा ब्रेस्ट के जो लोब्यूल्स हैं और उसकी डक्ट्स हैं उसके ऊपर, और मिल्क जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इनिशिएटिंग, अ सिंगल इनिशिएट कैन लीड्स टू मिल्क प्रोडक्शन। ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? गुड, दैट्स गुड। सानिया उबैद, ओके, यू कैन गेट माई पॉइंट। पॉजिटिव फीडबैक समझ आ गया। पॉजिटिव फीडबैक देखिए उस मामले में बहुत खराब है जब कोई सब्जेक्ट जो है वो 2 लीटर ऑफ ब्लड लीड कर देता है। 1 लीटर करता है तो क्या हो जाता है, माइल्ड पॉजिटिव हो जाता है, मरीज बच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो समटाइम्स दिस पॉजिटिव फीडबैक गोज इनटू एन विशियस सर्कल एंड सब्जेक्ट इज डाइड। लेकिन वो सिर्फ ब्लड लॉस में हमने आपको एग्जाम्पल दी है। लेकिन हियर वी कैन I'll give you an example in uterine contraction, blood clotting mechanism, like if someone have a very little milder injuries, और lactation में and generation of nerve signals, ये सारे जो है वो positive feedback के examples हैं which are necessary for the normal human life। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है बच्चों आप लोगों को? ये जो चैप्टर आज हमने डिस्कस किया है, आई रिक्वेस्ट ऑल यू न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आज इसको जरूर एक रीड दीजिएगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। तो है सब जो पहला आप लोगों का चैप्टर है उसी को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप इनिशियल से ही इनको अपने टॉपिक्स को रिपीट करना शुरू कर दें। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम जो है चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। गुड, ठीक है। हमारा आज नेक्स्ट जो है वो एक रिवीजन लेक्चर भी है फ्रॉम 1 to 2। आई होप प्लीज आप लोग ऑल कैन ज्वाइन मी। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो सेल के फंक्शंस की तरफ आएंगे हम, ठीक है, और सेल स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनेलिज को हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और डिफरेंट भी हम कुछ इसमें चीज़ें हैं जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिज हैं जिनके हम डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज के तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सेल वैसे तो बहुत आसान एक यूनिट है लेकिन अगर सेल के फंक्शंस को आप इजीली पढ़ लेते हैं तो आगे बहुत सी चीज़ों में इनके छोटे छोटे से फंक्शंस हमें डिस्कशन के अंदर ज़रूर आते हैं तो हम फौरन रिकॉल करते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ सेल में पढ़ी हुई है। ठीक है, कहीं पे हम प्रोटीन्स का जिक्र कर रहे होते हैं, कहीं पे हम लिपिड्स का जिक्र कर रहे होते हैं, कहीं पे हम बात कर रहे होते हैं इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की। वो चीज़ें बाद में हमारे लिए बड़ी इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये क्योंकि बेसिक इसमें हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिक ही होना ज़रूरी होता है ताकि हम इजीली बाकी की चीज़ें, बाकी के सिस्टम्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, यहाँ तक अगर सबको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। यहाँ अभी स्टिल वी हैव 3 minutes लेफ्ट। अभी भी किसी बच्चे को कोई बात अगर समझ नहीं आ रही तो आप अभी भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं ये जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम तो उसको मैं अभी रिपीट भी कर सकते हैं इन वेरी क्विक फॉर्म। अच्छा, वीरा जो है वो पूछ रही है हाउ पॉजिटिव फीडबैक इज लीड्स टू हीट स्ट्रोक, लीड्स टू ये डेंजरस क्यों है? होता है क्या है कि हीट स्ट्रोक में जो है ना वो सब्जेक्ट क्या होता है कि जो ब्रेन के एक सेट पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ब्रेन के उन सेट पॉइंट्स की वजह से ब्रेन का एक टेम्परेचर का सेट पॉइंट है, ठीक है,
मैंने जैसे बात की थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है, सबका है, इसी तरह से टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट है, ठीक है। वो सेट पॉइंट एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर तो एक सब्जेक्ट हीट स्ट्रोक के अंदर है और वो वहाँ से उस एरिया से जल्दी से इवैक्यूएट नहीं हो सका, ठीक है, तो वो एग्जॉस्टेड उसमें चला जाता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के अंदर सब्जेक्ट डिहाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेट टेम्परेचर कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, इसीलिए जो है वो एग्जॉस्ट होके भी हीट स्ट्रोक कैन लीड्स टू डेथ, ठीक है। हैजार्ड्स भी हैं इसके ये, कि हीट स्ट्रोक जो है वो फाइनली क्या करता है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगेन इसके जो सेंटर्स हैं वो ब्रेन में मौजूद है, ठीक है। हम जब स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ हम और भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये ब्रेन को डैमेज कर रहा है। मासूमा, मैं प्रिंसिपल साहिबा से एक दफ़ा पूछ के डिस्कस करके देन आई विल गिव यू दिस, ओके। एंड मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग प्लीज़ गाइडन भी खोलें, ताकि वहाँ पर भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।